So we are saying lean का एक method, एक toolkit, if you can call it, is referred to as 3M, where we are saying there are 8 types of waste. One which is referred to as overproduction. We're saying when you produce more than necessary. Over processing, adding something more while not adding value to the customer. Excess inventory. Lean is always of the view. Yeah, sorry. Yeah, Akanksha. Yeah, I have one doubt. So this Muda is called as waste. Why it's 7+1? Why not 8 directly? Actually, साथ ही होते हैं. For past few years in India, we have started to add one more waste of unutilized human resource. तो अभी भी lean per se you only have 7 waste, लेकिन अब इंडस्ट्री में लोगों ने इसको 8 बना दिया है. So I still don't want to call it 8. I want to call it 7+1. 7 original, एक हमारा फर्जी वाला. That way. Okay. तीसरा वेस्ट हम कह रहे हैं excess inventory. We are of the view that if you have excess inventory, तो this is going to add to your trouble. Excess inventory का outcome क्या होगा? You will block your capital. Assume करो that you are a factory and you manufacture motorcycles. Per day जितना part आपको लगता है उसके बजाय आपने 365 days का बैकअप रख लिया. 365 days का बैकअप रखने का आउटकम क्या होगा? एक तो छोटा सा आउटकम है दैट पैसे ब्लॉक हो जाएंगे आपके. You will need space will be needed for excess inventory. Sometimes you may need to build some safety provisions. Yes, everyone? कितनी बार ये इनोवेशन प्रिवेंटिव होगा? अभी मेरे साथ हुआ. I handle 11 airports in this country. तो at the Delhi airport station हमारे स्पेयर्स डिपार्टमेंट ने, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने ट्रैक्टर्स का, जिससे पैसेंजर्स का लगेज फ्लाइट तक और फ्लाइट से वापस आता है, उसका 12 महीने का हमने स्टॉक खरीद लिया. दूसरा डिपार्टमेंट जो वो ट्रैक्टर जोन करता है, उन्होंने वो ट्रैक्टर बेच दिया. अब सारा का सारा 1 साल 1.5 साल का स्पेयर पार्ट हमारा कबाड़ हो गया. विथ मी एवरीवन? Yes. किसी भी किस्म का अननेसेसरी मूवमेंट, मोशन या ट्रांसपोर्टेशन. सामान का मूवमेंट is referred to as transportation. इंसान का movement is referred to as motion. So if you have your processors doing too much movement, it is going to waste their time. No? Yes. मुझे कोई सामान के प्रोडक्शन में 6 इनपुट्स लगता है. अब वो 6 इनपुट और 2-4 रिसोर्सेज लगते हैं. कोई स्क्रू ड्राइवर लगता है, कोई प्लास्ट लगता है. Now when I need it, I actually need to walk 20 steps to pick it from somewhere, come back and do it. तो ये तो मेरे प्रोसेसिंग टाइम को वेस्ट करेगा ना. उस टाइम पे मैं प्रोडक्शन कर सकता था. निशा, विथ मी? यस सर. Yes. सर्जन अगर आपका हार्ट का ट्रांसप्लांट कर रहा है और उस समय वो अपने इक्विपमेंट्स ढूंढने जाए, तो भगवान भला करे पेशेंट का. We want lean is of the view that treat your operator like a surgeon.
सब कुछ उसकी हाथ की दूरी पे होना चाहिए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल घर होता है। जो किचन अम्मा मैनेज करती है, इफ शी अंडरस्टैंड दैट यू आर अ हाउस दैट यूजेस टू मच टी, तो चाय और चाय की पत्ती और चीनी इज एब्सोल्युटली एक्सेसिबल विद इन द रेंज ऑफ हर हैंड। करेक्ट एवरीवन? वही एक दो बार इस्तेमाल होने वाली कटलरी पॉसिबली कहीं सेफ ही रखी हुई है, बिकॉज शी अंडरस्टैंड दैट आई विल नीड इट वंस इन अ वाइल, वंस मे बी एवरी मंथ। नॉट क्लियर है? Yes. मोस्ट। Yes. वही अगर आपका सामान इधर से उधर ट्रेवल कर रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, then we are referring to that as unnecessary transportation. I remember my own time. यहाँ एक where is paint? यहाँ खुर्जा में एक पोर्सिलिन का प्लांट है. We were consultants there appointed by the customer, and the customer told us that Pranay, we are unable to get things from this factory on time, तो please जाके मदद करो. ये क्या हुआ? How do I draw this? How do I draw this? सो अज्यूम करिए यहाँ पे ये पूरी फैक्ट्री है. ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरी पूरी फैक्ट्री है. तो ये दारची, द ओनर ऑफ द प्लेस, थोड़ा लाउड नहीं हो सकते हो? व्हाट इज दिस? दिस इज दिस पेंसिल, कैन आई चेंज समहाउ? Pranav, you can change the size of the pencil from the left side. You can see the, you can drag it. Yeah, on the left side there are two Yeah, ये bars. वाला? Yeah, you can increase Yeah. that. Huh. yeah. Thank You God. can see the dot. हाँ, गुड, थैंक यू. सो अज्यूम करो ये पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया है. सो देयर इज अ गेट हियर एंड अ गेट हियर. उन्होंने यहाँ गोडाउन बना रखा है. मेरा प्रोसेस स्टेप नंबर 1 इज हैपनिंग हियर. दिस इज माय स्टेप नंबर 1. अब यहाँ पोर्सिलिन के इक्विपमेंट्स बन गए. अच्छा, दारजी वाज वेरी शौकीन, so he had a beautiful garden here in the center, and he had a cycle stand here. Now after the porcelain was made here, the process step number 2 was happening here. Now this poor Abdul had to pick up 400 katoris and would travel from here to here. जब प्रोसेस स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो प्रोसेस स्टेप नंबर 3 यहां पर बैठा हुआ है. फिर अब्दुल ने ये पार्ट उठाया और ये पार्ट उठा के यहां से पार्ट नंबर स्टेप नंबर 4 किधर भी यहां बना देते हैं. फिर वही यहां से सामान उठाया, सामान लेके यहां गए. तो पता चला 8 steps of the process are so unaligned that it is creating lot of unnecessary motion, lot of unnecessary transportation. Everyone with me? Yes. Yes. अब तुमने सारा रॉ मटेरियल यहां रख लिया. स्टेप शुरू कहां से हो रहा है? यहां से. इसका मतलब मैं ट्रक से सामान यहां डालूंगा, फिर ये रॉ मटेरियल यहां से यहां लेकर के जाऊंगा. क्या बेवकूफी है यार. एक छोटा आरएम का गोडाउन यहां नहीं बना सकते हो? यहां ट्रक आ रहा है, यहां से जाने वाला कर दो. दिस शुड बी वेयर योर फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग. दिस शुड बी वेयर योर रॉ मटेरियल एक्सेट्रा इज एंटरिंग. आर यू विथ मी, ध्रुव, निशा? Yes. Yes, Pranay. Yes. दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन. इंसान का मूवमेंट, अननेसेसरी मोशन. Okay. एक तो वेस्ट इज डिफेक्ट, एक तो वेस्ट इज वेटिंग. If in the business process you are waiting for any reason, you are waiting for approval, you are waiting for parts, you are waiting for handover from
previous step. With me, everyone? ये भी lean में we are considering as waste. क्या क्या हो गया? Over production, over processing, unnecessary excess inventory, unnecessary motion, unnecessary transportation. क्या हो गया? Effect and waiting 7. ये 7 वेस्ट. एक 8वां हमने कहा अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स. अगर आपके पास आपके लोग खाली बैठे हैं तो वी आर रेफरिंग टू दैट आल्सो एज अ मुदा, अ वेस्ट. विथ मी ऑल ऑफ यू? Yes. 5 मिनट टाइम लगा, 2 मिनट टाइम लगा. मुझे चैट जीपीटी से इसके एग्जांपल्स निकाल के बताओ. ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, excess inventory, unnecessary motion, unnecessary transportation, waiting, unutilized human resource. इसके एग्जाम्पल निकाल के बताओ. Take out two examples from your own relevant industry, from your own industry. I put these on your chat so that you are able to copy paste. Yeah, I have taken the example for my current company, that is Verizon. So do I Sure. need to paste it here? in the हाँ, chat? और share your screen. Share your screen. Okay. Is it visible? Yeah, coming up. Overproduction. थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ. इसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट अभी से बनाना शुरू कर दो. Keep copy pasting it. Okay. So we are saying overproduction, production more than needed. Verizon installs extra network router or SIM card in a region where customer demand is low. Okay, leading to unused telecom assets and unnecessary cost. Fair thought. Fair thought. जरूरत से ज़्यादा I see business processes today. मुझे कस्टमर को का कमिटमेंट है, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 40 things per hour करूंगा, and I am doing 50. Unnecessary. Yes. Over processing. A customer complaint goes through multiple verification levels and repeated documentation. Even though one system check is enough. Okay, absolutely. I'll tell you my own story 2-3 days ago. Yeah, My here banker. I can add also, like Verizon has their own bot. Before like before connecting with an agent, there is a verification which used to do by the bot also. So again, because customers are doing their verification in with IVR and then again verification with the agent, that is a time consuming also. Absolutely. Not just time consuming. It is irritating your customer. Yeah. Customer Yes. experience is God. अगर आपको बिजनेस में आज रहना है तो कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करना पड़ेगा. इफ यू आर टॉर्चरिंग योर कस्टमर लाइक दिस, गॉड ब्लेस यू. 2-3 days ago, I randomly got a call from my RM for my bank. He said, sir, there is a process. I was not listening very hard. There is a process through which you can get personal loan. Trust you me, all it took for them to give me my personal loan was 32 minutes. आकांक्षा, ऐप पे उन्होंने मुझसे फॉर्म भरवाया. वो फॉर्म प्री फिल्ड था. ऑल आई हैड टू डू वाज, एक लिंक आया, उस पे मुझे क्लिक करना था. आई एग्री. एंड देन 5, 10, 12, 15 minutes later came in a guy जो फिजिकली मेरे घर पे मेरा आधार कार्ड चेक किया, एंड आई गॉट माय पर्सनल लोन डिसबर्स्ड इन फ्लैट 32 minutes. निशा, पर्सनल लोन, होम लोन जैसी चीजें तो इंडिया में 10-10, 20-20, 25-25 दिन लगती हैं. True. अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो, वो अननेसेसरी प्रोसेसिंग, वो ओवर प्रोसेसिंग को हटा दो, तो आपका भी कितना टाइम बचेगा और कस्टमर का भी कितना टाइम बचेगा. एंड ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस कि मैं
आपको आज आपकी ट्रेनिंग बैच में सुना रहा हूँ, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था उस पूरे एक्टिविटी का। आर यू विथ मी? Yes. And that- Keeping more inventory than required, excess inventory. Verizon stores too many smartphone routers. Absolutely. सिर्फ पैसा बर्बादी है। अगर आप इतने सारे राउटर्स मेंटेन कर रहे हो और राउटर में एक नया कोई फीचर आ गया, अब एआई एनेबल्ड राउटर आने लगे, अज्यूम करो, तो तुम्हारा सारा का सारा स्टॉक कचड़ा हो जाएगा। उसको ठीक से रखने के चक्कर में तुमको सेफ्टी प्रोविजंस करने होंगे, बड़ा स्टोरेज स्पेस का जरूरत होगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज ये, खास करके मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का। मोशन, field technicians travel back and forth repeatedly between telecom towers or office because tools, spare parts, or customer information was not prepared before. Absolutely. Transportation, unnecessary movement of goods or material, shipping telecom equipment from one warehouse to the other multiple times before installation, instead of direct delivery to the network site or customer location. Chalega. Effect, a customer's internet service is incorrectly activated. It's a defect. Waiting days for SIM activation, broadband installation. Correct. Approval, a simple network maintenance task requires manager, regional head, compliance approvals. मुझे लगता है अप्रूवल को तो ये क्या कर दिया इन्होंने, एक अप्रूवल भी बना दिया। ये अप्रूवल क्या हो गया? अप्रूवल नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं होता इसमें, हैंड ओवर भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो हमने डाले थे। Yeah. और नीचे करो, unutilized human resource, not using employee tenant effectively. Correct. Good. Dhruv, तुम्हारे एग्जांपल्स? Please allow me of 4 to 5 minutes. You can move on with Sure. another, please. हाँ, श्योर, टेक इट टाइम। मुझे भी 2 मिनट चाहिए, आई नीड अ स्मोक ब्रेक। निशा अपना दिखा दो प्लीज। Sir, I already texted. I already pasted. Actually, I'm using phone. I can't share my screen because of some अच्छा, issue. no But I problem. already pasted here. ठीक है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। Okay. Unnecessary movement of material or products. Example, moving parts between different warehouses multiple times. Okay, unnecessary transportation. ठीक है। अब उसका उल्टा भी होने लगा है निशा। So some places we are now adding unnecessary excess transportation to reduce the inventory cost. I am currently helping Rainbow Hospital in Hyderabad. हर हॉस्पिटल में हमारे बहुत सारा स्टॉक होता है, that is blocking a lot of capital. So now what we've done is we've created a central hub जहां पे सारे मेडिसिन होंगे और रोज के आपके कोटे का मेडिसिन हम आपको सुबह 8 बजे डिलीवर कर देंगे। Okay. So we are now saying कि unnecessary excess inventory, हमारे पास 24 करोड़ का इन्वेंट्री बैठा हुआ था 6 हॉस्पिटल्स में। 24 crores is a huge amount of money. And when we saw the consumption pattern wasn't that difficult. तो हमने सेंट्रल वेयर हाउस बना दिया, 2 दिन 3 दिन का के से ज्यादा आपको इन्वेंट्री हम देंगे ही नहीं। But in case कभी ज्यादा amount लगा तो फट से मिल जाएगा आपको। तो आपको 10 मिनट का वेट टाइम होगा, आधे घंटे का वेट टाइम होगा। कुछ ऐसा इमरजेंसी वाली जो मेडिसिन हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, वो तो हम आपके यहाँ स्टोर करके रखेंगे 2-4। बट अदरवाइज हम आपको सरदर्द की गोली पर डे आपके यहाँ 500 इस्तेमाल होती है, हम आपको 1000 दे के रखेंगे, 1500 दे के रखेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आई विल नॉट अलाउ यू टू स्टॉक इट फॉर द एंटायर मंथ। मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, आप ये समझो। what if they asked? हाँ, What if they asked for more? no, I am the this is the Rainbow Hospital CEO instruction to the hospital. ये आपको कुछ वेरिएशन चाहिए तो बताओ, बट ये बताओ कि आपके पास पूरे मंथ का स्टॉक क्यों रखना है आपको। आप 10 दिन का स्टॉक रख लो, आप ज्यादा लड़ रहे हो तो मैं आपको 10 दिन का स्टॉक देने को तैयार हूँ, 5 दिन का स्टॉक देने को तैयार हूँ कि सर 1 दिन से मेरा नहीं होगा, आप मुझे 5 दिन का दे देता हूँ, बट मैं महीने का तो नहीं रखने दूंगा आपको। मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है। और फिर बाद में मंथ एंड पे सबसे लड़ाई करो, ये मेडिसिन वापस लो, वो मेडिसिन वापस लो। ऑल दैट ड्रामा इज ऑल्सो हैपनिंग।
Now that someone at the central office is managing your inventory, it is being managed very well. जिसका expiry date नजदीक आ रहा है उसका replacement हो जा रहा है. So a lot of things will come about. Inventory, keeping 5 months of stock when 1 month is needed. After the Ukraine war, after this Iran war, everyone wants to keep stock, but otherwise बहुत डेंजरस था ये, बहुत ज्यादा डेंजरस था ये. I have factories which I support. मतलब बैंड बजी हुई है, इतना ज्यादा इन्वेंट्री है. और इन्वेंट्री का मतलब पैसा. मेरा एक कस्टमर है, उनके पास 124 करोड़ के कंप्रेसर्स पड़े हुए हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टाफ है, हमारे पास मशीन है. मेरी मशीन की कैपेसिटी पर डे 5000 की है. देखा जाएगा, बना लेते हैं पूरे महीने का. मैं निशा को खाली क्यों रहने दूं? ये जो एटीट्यूड है ना लीडर्स का, स्टाफ को खाली नहीं बैठने देने का, उसके चक्कर में आपने ओवर प्रोडक्शन कर दिया. उसके चक्कर में आपने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री खड़ी कर ली. वर्कर्स वॉकिंग बैक एंड फोर्थ टू कलेक्ट टूल्स रिपीटेडली. करेक्ट. या आपके एक डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट फैक्ट्री में बहुत दूर है. आइडल टाइम व्हेन पीपल और मशीन्स आर वेटिंग. हाँ, कहीं अप्रूवल के लिए वेट हो रहा है, कहीं रॉ मटेरियल के लिए वेट हो रहा है. वर्कर्स वेटिंग फॉर मशीन रिपेयर. करेक्ट. करेक्ट. Overproduction, manufacturing 1000 units before customer orders arrive. Absolutely. Overprocessing, example, polishing hidden machine parts when which the customer never see. Absolutely. Defects, error requiring rework or replacement. Fair, fair. I was helping Reckitt Coleman, ये Dettol वाले. तो इनके साथ हम इनके फाइनेंस प्रोसेस की स्टडी कर रहे थे. आई एम शोइंग यू दैट स्टडी कि सैलरी प्रोसेस कैसी होती है. यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन? No. No, sir. अब दिख रहा है? Yes. Yes, visible. Yes. सो हियर दिस स्टेप, इसको किसी कलर से मैं कर देता हूँ तक. सो ये जो अभी मैंने कलर से हाईलाइट किया, दिस इज द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन पेरोल प्रोसेसिंग एट द डेटॉल कंपनी, Reckitt Benckiser. तो इनका स्टेप नंबर 1 क्या है? HR डिपार्टमेंट अपना सारा इनपुट, मैनुअल इनपुट शीट तैयार करेगा. वो इनपुट शीट ग्लोबल पेमेंट टीम को, जो गुड़गांव में बैठी हुई है, उसको मेल करेगा. ग्लोबल पेमेंट टीम रिव्यू को पढ़ेगा. ग्लोबल पेमेंट टीम वो शीट सारे अलग अलग और स्टेक होल्डर्स टीम से जो इनपुट आया उसको इवैल्यूएट करेगा. कोई बेनिफिट का टीम था, कोई इंसेंटिव कैलकुलेशन का टीम था, कोई और टीम था, कोई एडवांस लोन लेने वाला टीम था. सारा इंफॉर्मेशन कोलेक्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ, फिर हम अपने वेंडर के लिए. सो दीज आर ऑल स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. ऊपर देखो तो यहाँ मुद्दा सारा लिखा हुआ है. ओवर प्रोडक्शन, एक्सेस इन्वेंट्री. इस वाले स्टेप में हमको अननेसेसरी प्रोसेसिंग बहुत सारी दिख रही है. हमको अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स दिख रहा है, बिकॉज वेटिंग टाइम बहुत लगता है. अननेसेसरी मोशन है, बहुत सारा एक्सेल शीट यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूम रहा है. ओवर प्रोडक्शन है. सो हर स्टेप पे हम मुदा मुरा मुरी करेंगे और अपने लिए इंप्रूवमेंट आइडियाज इकट्ठा करेंगे. सिंपल थॉट एवरीवन? यस, नो, ब्लैक व्हाइट पीपल? Yes. Yes, sir. एक ग्रुप ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे काइजन बनाया है. दिख रहा है आप लोगों को स्टेप्स? Yes. ये स्टेप्स हैं. HR मैनेजर रेजेस रिक्वेजिशन, HR वैलिडेट्स रिक्वायरमेंट एंड बजट, जॉब डिस्क्रिप्शन फाइनलाइज हुआ. ये सारे स्टेप्स हैं. और उसके ऊपर उसने बैठ के हर स्टेप के लिए मुदा मुरा मुरी कर दिया है. HR
किसी ने एक नया हायरिंग रिक्वेस्ट रेज किया, ही इज सेइंग दैट उस हायरिंग रिक्वेस्ट में बहुत सारी गलतियां होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल फर्जी सा, इनकम्प्लीट सा रिक्वेजिशन फॉर्म आ जाता है, ओवर प्रोडक्शन तो नहीं है, वेटिंग टाइम इन्वॉल्व है, ओवर ट्रांसपोर्टेशन नो, इन्वेंट्री नो, मोशन यस, यहाँ से वहां फाइल जा रही है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग यस, उसमें बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मुरी मतलब ये मुरा मतलब कोई भी अनरीजनेबल बात आप कर रहे हो, कोई भी बेवकूफ जैसी आप बात कर रहे हो, तो उसको हम अनरीजनेबलनेस कहते हैं। और कहीं भी बहुत ज्यादा कहीं ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो हम उसको मुरी कहते हैं। सो हर स्टेप पे हम इस मेथड में हर स्टेप पे मुदा मुरा मुरी करेंगे और फिर उसके अनुसार अपने आंसर्स निकालेंगे, हाउ डू वी फिक्स दिस। ठीक है एवरीवन, ये उसके आंसर्स हैं। आई शेयर दिस शीट विथ यू, और एक दो ऐसे एक्सरसाइज हम करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा ये। अभी तो मैं बस हाई लेवल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, सो आई एम नॉट गेटिंग वेरी डीप इनटू दिस। विल डू दिस इन डिटेल इन द सब्सिक्वेंट सेशंस। ओके Okay. सर मेरा एक डाउट है, प्लीज दिस इज पूछिए। ऑल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ना, सो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, हाँ मीन्स इन एवरी कंपनी देयर विल बी दिस थ्री एस्पेक्ट्स, मुदा मुरी एंड करेक्ट, हमको मुरा, असेस करना है तीनों। हाँ, हमको तीनों असेस करना है, मुदा मुरा मुरी तीनों। इट विल बी कंपल्सरी इन एवरी कंपनी, मीन्स हर मतलब कंपनी ये फॉलो करती है क्या, उसमें ये चीजें रहती है क्या, ये डाउट है। करनी ही है। हो सकता है कि आपकी कंपनी में आपको कुछ अनरीजनेबल नहीं मिले, बट एज अ डॉक्टर आपके टेस्ट में ही लिखा ही होना चाहिए कि मुझे मुदा देखना है, मुरा देखना है, मुरी देखना है। ये एस्पेक्ट्स फिल्टर हो गए ही पहले। हाँ, ओके। with me so far everyone? Yes. So one method is called muda, another which is referred to as mura, अगर आपके बिजनेस प्रोसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, मुरी मतलब कुछ भी बेवकूफ जैसा। आई एम करंटली वर्किंग फॉर अ कस्टमर, ध्रुव, हर हायरिंग पे सीईओ का अप्रूवल लगता है। डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट? Someone as senior as a managing director, CEO, if he is involved in every hiring, I don't know उसके पास काम करने का टाइम कब बचता होगा। Are you Yes, guys with me? exactly. So, Exactly. आकांक्षा, Makes sense. AIG के पुराने ज्वाइनिंग फॉर्म में हम आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछते थे और एड्रेस पूछते थे। दिव्या, क्या लॉजिक है डेट ऑफ बर्थ पूछने का? sorry, sir. Can you repeat it again? So when we were onboarding you as a student at AIG, Okay. all of the student had to fill up a form. In the form, we asked you your name, Mm-hmm. we asked you your date of birth, we asked you your address. Mm-hmm. डेट ऑफ बर्थ पूछने का क्या लॉजिक, एड्रेस पूछने का क्या लॉजिक? कुंडली मिलाना है, एड्रेस क्या करना है? नहीं एड्रेस अगर कंपनी पूछ रही है तो उससे ये लॉजिक है कि मतलब यही होता है हमारा, मतलब एक तरीके से आईडी प्रूफ होता है कि हम कहाँ रह रहे हैं अभी, मुझे क्या क्या करना है। है? दिव्या, दिव्या तुम फरीदाबाद में रहने की बजाय हैदराबाद में रहो, हाँ, मेरे ये भी है लीव के सर। डिलीवरी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्यों जानना है मुझे? क्यों जानना है? आकांक्षा,
आकांक्षा, unnecessary. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ न्यू लॉ कॉल्ड डीपीडीपी एक्ट. किसी का फोन नंबर, किसी का ईमेल एड्रेस, किसी का एड्रेस इज कंसिडर्ड एज पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन. इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. तो कैप्चर ही क्यों करना है? क्यों जानना है तुमको ध्रुव का एड्रेस? क्या फायदा हो जाएगा? निशा, आई एम कॉलिंग दिस एज अनरीजनेबलनेस. बेवकूफी है ये. ध्रुव, आज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के नाम पे whichever company you join, Akanksha has joined Teleperformance. Teleperformance क्या करेगा? Akanksha का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा. They will go to Akanksha's place and check her address. Akanksha, if you lived in flat number 304 instead of flat number 112, does it make you unemployable? No. तो क्या, क्यों जानना चाहते हो कि आकांक्षा रहती कहाँ है? It is just unnecessary. I am not in agreement. आप सोचो. ध्रुव, पर इसका ये तुमने भी रीजन हो सकता है कि अगर कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि कोई जो हमारा मतलब पास्ट में कोई हमारा वो है, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, ठीक है, तो इसके रिलेटेड भी कंपनी जो है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है. तो पुलिस वेरिफिकेशन कर लो. एड्रेस वेरिफिकेशन से तो पुलिस जस्टिफिकेशन नहीं होगा. Exactly. मेरा ये कहना है दिव्या कि हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए. मेरी टीम ने Right. मुझे कन्विंस किया कि सर हम डेट ऑफ बर्थ इसलिए मेजर करते हैं, कैप्चर करते हैं कि ध्रुव के बर्थडे पे हम ध्रुव को विश करना चाहते हैं. अगर और सोच सर के किया इसमें है, ये भी होता है, जैसे अभी हम वर्किंग विद एक्सेंचर, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इसलिए भी होता है कि कंपनी जो है हमें कैब वगैरह जो प्रोवाइड करवाती है वो हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि समटाइम्स जो लोकेशंस होती है इससे नॉन सर्विसेबल एरिया होता है, वहाँ पे भी नहीं कंपनी देती कैब. But देखो, for ये that भी they एक just need address. Why verification needed for cab facility? करेक्ट करेक्ट. अब आकांक्षा, in India is it possible that you can do your MBA without doing your class 10th? No. No. Nisha is a QMS person. So I have hired Nisha because she is a certified lead auditor for ISO 9001. What is the logic of checking her graduation certificate? What is the logic of checking her class 10th mark sheet? पहला तो क्वेश्चन यही है. Dhruv, is it possible that in India you can become a graduate without passing class 10th? Not possible. Then why are you verifying class 10th का mark sheet? I think while you are going to, take admission in a new university for graduation, they just need a proof that you have actually completed your 10th. तो अभी आकांक्षा का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना है टेलीपरफॉर्मेंस में. टेलीपरफॉर्मेंस वाले इसका क्लास 10th का ही मार्कशीट वेरीफाई करेंगे. क्यों करना है? मुझे ये अनरीजनेबल लगता है, मुझे ये अनइंटेलिजेंट लगता है. आर यू गाइस विद मी एवरीवन? Yes. मुदा मतलब वेस्ट, मुरा मतलब अननेसेसरी वेरिएशन है. किसी दिन बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत कम काम हुआ, बहुत ज्यादा वेरिएशन है आपके काम में, और हम एक बात और बोल रहे हैं, अनरीजनेबल, कुछ भी अनइंटेलिजेंट. सीईओ अप्रूविंग एवरी हायरिंग रिक्वेस्ट. स्टूपिड. आर यू गाइस विद मी? Yes. But Pranay, can you tell us something about why they are asking for our address and why they are asking for the 10th certificate? बिकॉज हम इंडियंस हैं. हमने कभी सोचा तो है नहीं. फोन किया अपने किसी दोस्त को, निशा तेरे यहाँ वो बीजीसी वाला फॉर्म है? हाँ है, भेज दे. कॉपी पेस्ट. बिकॉज हम नेसेसरली डम लोग हैं. हमको लोगों को चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है. आप ये सोचो ना, मैं जो कल आपको बोल रहा हूँ पर्सनल लोन वाला, उस इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट टू एंड पर्सनल लोन डिसबर्सल हैपेंड इन फ्लैट 32 मिनट्स. मिस्टर ध्रुव सिंह, 32 मिनट्स. उसमें भी 32 मिनट में उनको ट्रैवल टाइम लगा, इसलिए 32 मिनट्स हुआ. दिव्या सोच के देख, नजर अप्लाई करके देख, कार लो, जान निकाल देंगे तेरा वो. जबकि लॉजिक बहुत सिंपल है. जबकि लॉजिक बहुत सिंपल है दिव्या. दिव्या का बैंकिंग एचडीएफसी के साथ है, तो मैं एचडीएफसी बैंक हूं, मुझे मालूम है उसका क्या बैंकिंग है. मुझे दिख रहा है उसका सैलरी क्रेडिट, मुझे मालूम है वो रहती कहाँ है. यही होते होंगे ना. मुझे मालूम है उसका सिविल, मैं पता कर सकता हूँ उसका सिविल स्कोर क्या है.
तो लोन अप्रूव या डिसअप्रूव करने में 2-2.5-5 मिनट लगेगा, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर है, कोई इंसान तो है नहीं। तो क्यों लगा 15 दिन भाई? क्योंकि हम नेसेसरली चीजों को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। Life will become much easier if you only spend 10 minutes to try and see how to make life easier for people around you, how to make life easier especially for your customer. नहीं करोगे ना तो दुकान बंद हो जाएगी। It is as simple as that. It is as simple as that. Organizations, businesses that will not find ways to help the customer will not survive in this extremely difficult competition time. आप टैक्सी कंपनी चलाते थे, कस्टमर को बदबू वाला टैक्सी मिलता था, कस्टमर के साथ आप रैंडम दाम मांगते थे, इसीलिए उबर सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए आज रेस्टोरेंट के आगे बहुत भीड़ थी, इसीलिए जोमेटो चल गया। जो कस्टमर को चीजें सलीके से प्रोवाइड करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने सिस्टम में बैठे हुए वेट टाइम को रिड्यूस करेगा, वही कंपनी सक्सेसफुल होगी। आर यू विथ मी एवरीवन? हमारा इंडियन कल्चर है करेक्ट वेटिंग। सर। यहाँ से वहां पूरी सेटिंग हो रखी है। मैनेजमेंट का काम क्या है? अभी मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में ISO 9001 कर रहा हूँ। प्रोसेस देखा मैंने, CEO बैठे थे, मैंने प्रोसेस देखा, उसमें 4-5 जगह मुझे अप्रूवल दिखा। हमने यार इतने बेरोजगार हो, हर प्रोसेस में तुम्हारे नाम पर अप्रूवल लगा हुआ है, वेले हो तो आ जाओ यार, AIG को ट्रेनिंग दो। तो हंसने लगा, प्रणय टीम के सामने बेइज्जती कर देते हो। बोले यार बेइज्जती होने वाला काम करोगे तो बेइज्जती करूंगा ही। निशा, मेरी कंपनी में लिटरली ये हालत है कि मुझसे पूछे बिना शायद वो लोग सिर्फ वॉशरूम जाते होंगे। कोई ऐसा चीज नहीं है ध्रुव मेरी कंपनी में जो मुझसे पूछे बिना होता है। मुझे अपना काम करने का कभी टाइम ही नहीं मिलता है ध्रुव। सर एक बात पूछूं, 40 पन्ने का प्रेजेंटेशन बना लिया, सर इसको रिव्यू कर दो ना। ध्रुव, 40 पेजर इंटेलिजेंट AI का डेक रिव्यू करने में टाइम लगता है भाई। तो मैं काम कब करूंगा? Then you start need to do Muda and Muni. हाँ। मैंने बोला भैया माफ करो, गलतियां करो खुद करो, मेरा काम होना चाहिए टू अपस्किल पीपल। कल तक क्या हो गया था ध्रुव, काम के चक्कर में मैंने AIG में ट्रेनिंग छोड़ दी थी। आई वॉज नॉट ट्रेनिंग इन AIG, बाकी ट्रेनर्स पढ़ाते थे। This is not what you should, this is not what you should do. दिव्या, अगर आप बेस्ट ट्रेनर हो तो बेस्ट ट्रेनर का काम पढ़ाना होना चाहिए ना। बेस्ट एवर ट्रेनर का काम अप्रूवल खेलना तो नहीं होना चाहिए। राइट सर, हम तो अप्रूवल खेल रहे हैं। तुम्हारे टाइम पे भी मैं बहुत कम बैचेस लेता था दिव्या। हाँ, मेरे टाइम पे बहुत कम बैचेस लेते थे। मेरे को ज्यादातर जो मतलब दिया है मतलब ट्रेनिंग जो भी है वो ज्योतिर्मय सर है उन्होंने, और नेहा करके है कोई, उन्होंने दिया है ज्यादातर। आपने अटेंड किया है? बीच में आपने अटेंड किया है? हाँ। So Muda Mura Muri is pretty simple and very common sense driven approach, Akanksha. I am currently implementing ISO 9001 in 4-5 organizations. उस QMS का निशा मुदा मुरा मुरी करेंगे। I'll show you कि उसमें कैसे वैल्यू एडिशन करते हैं, QMS को कैसे लीन के साथ क्लब करके हम वैल्यू ऐड कर देंगे कस्टमर के लिए, और तब जाके मजा आएगा खेल का। नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। Organizations will have to realize that these bottlenecks, these unnecessary steps, कहीं वो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब कर रहा है, कहीं वो आपके एम्प्लॉय को फ्रस्ट्रेट कर रहा है। आई एम हेल्पिंग यामाहा, तो उनके प्रोसेस 1 में 100 पार्ट्स बनते हैं हर घंटे में, प्रोसेस 2 में 200 पार्ट का नीड है हर घंटे। ध्रुव, 100 सामान तो तुमने मुझे दे दिए, अब मुझे चाहिए थे 200, तो 100 को तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा, बाकी टाइम क्या करूंगा? वेट करता बैठूंगा?
करेक्ट ना? Yes. Yes. यस सर। ऐसे धंधा कैसे चलेगा? या तो वहां हेडकाउंट मशीनें बढ़ाओ कि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी 200 करो, बिकॉज सब्सिक्वेंट प्रोसेस को 200 चाहिए, या इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी घटा दो, 100 कर दो। करेक्ट ना? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को तो मैचिंग करना पड़ेगा ना। राइट आपको सर। सोचना पड़े आपको अगर सोचना पड़ेगा कि आप इंडियन रेलवेज हो और आपके टिकट कटाने की लाइन बहुत लंबी हो गई है, इट सिंपली मीन्स दैट यू विल हैव टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कस्टमर टू बुक टिकट्स। आउटकम आईआरसीटीसी का वेबसाइट। आपने कहा दिव्या आप घर से मत निकलो, घर से ही बुक कर लो ट्रेन की टिकट। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड, शायद सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि एक रेवेन्यू मेकिंग इंजन में कस्टमर को तुम वेट कराते हो, कस्टमर को कंफर्म टिकट नहीं मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है ध्रुव? कि ध्रुव कह रहा है कि मुझे यहां से मथुरा जाना है ट्रेन से, और रेलवे कह रहा है बाद में बात करेंगे, अभी तुम वेटिंग टिकट ले लो, या तुमको हम टिकट कंफर्म टिकट देंगे ही नहीं। ऐसा कहीं सुना है तुमने कि उबर ने तुमको बोला हो कि तुमने बोला उबर, हेलो उबर मुझे 12 बजे का टैक्सी दे दो, बोला नथिंग डूइंग, अभी वेट टाइम है। अरे भैया तो और गाड़ी लगाओ, वेट टाइम है तो। मुझे अपना पर्सनल एस्टिमेट है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वुड हैव बीन वेस्टेड because we don't have the right number of because we are not able to provide confirmed tickets to customers. निशा मैं बिहार से हूं, हमारे यहाँ की टिकट की ट्रेन तुमको ऑलमोस्ट कभी नहीं मिलेगी, और खास करके हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, छठ, दुर्गा पूजा एंड ऑल दैट टाइम, तो कभी नहीं मिलेगी तुमको टिकट। तुम्हारे पैसे का नुकसान हो रहा है, डैम इट। ध्रुव, अगर तुम्हारे पास हेड ज्यादा काम आ गया सितंबर अक्टूबर में, तो तुम हेडकाउंट बढ़ाते हो ना यार। Yes. कितना अनइंटेलिजेंट बात है कि छोटा छोटा बिजनेस हमारे तुम्हारे जैसा बिजनेस समझ जाता है कि यहाँ हेडकाउंट बढ़ाने की जरूरत है। सिंपली दूसरे जगह जा रही ट्रेन को रोक दो कि अभी मेरा मैसूर वाला ट्रेन में ऑक्यूपेशन कम है, तो उसका उसका बोगी कम कर दो, वो वाला डिप्लॉय कर दो इधर, पैसे कमाओ। दैट इज हाउ द नेशन विल प्रोग्रेस। एंड आई फाइंड दीज थिंग्स वेरी अनइंटेलिजेंट एंड वेरी हर्टफुल। अब आपको बिजनेसेस को हर जगह मुदा मुरा मुरी का असेसमेंट करना होगा to be able to develop their business processes yielding profit, yielding better customer experience, yielding better results. नहीं करोगे तो दुकान बंद हो जाएगी। सो वो जो सॉरी बहुत गंदा था ये। तो इसका उपाय क्या है? इफ यू आर प्लानिंग अ न्यू फैक्ट्री और अननेसेसरी मोशन, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, यहां मेरा अगर एंट्री का पॉइंट है तो मेरा रॉ मटेरियल का गोडाउन कहीं यहीं बना देना चाहिए। प्रोसेस स्टेप नंबर 1 यहां बना दो, ये मेरा स्टेप 1 है, यही मेरा स्टेप नंबर 2 है, यहां मेरा स्टेप नंबर 3 है। नो, खत्म, Yes. अननेसेसरी मूवमेंट। अगर ये मेरा आखिरी स्टेप है तो फाइनल गुड का एफजी गोडाउन यही होना चाहिए, यहां होना चाहिए मेरा फाइनल वाला गोडाउन। करेक्ट ना? Yes. इसका मतलब सामान बाहर जाने का ट्रक यहां लगना चाहिए। कितना सिंपल तो है। अननेसेसरी मोशन, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, 1 मिनट में साफ। नहीं करोगे बहुत अननेसेसरी कॉस्ट होगा, बहुत अननेसेसरी कॉस्ट होगा। मेरे एक कस्टमर है, तो बहुत बहुत बड़े बड़े आयरन बार्स आते हैं उनके पास। तो अज्यूम करो ये पूरी फैक्ट्री है, यहाँ वो हजारों बार्स, लोहे के बार्स, बहुत भारी, वेरी हैवी, यहाँ आके गिरेंगे। ट्रक से आएगा, बड़े वाले 16 चक्के वाली ट्रक से आएगा, यहाँ गिरेगा, चला गया ट्रक वाला। यहाँ मेरी फैक्ट्री है, तो मैं इसको फिर उठाऊंगा और अपने कटर के पास भेजूंगा, जो कटर इसको छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ेगा, इतने छोटे छोटे काट देगा वो। क्या हम कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते हैं कि कटर के आसपास ही हम अपना सामान उतारे, कि यहां से यहां उठा के लाने का जो खर्चा है मेरा, ये खर्चा बच जाए? एंड दीज आर ब्लडी हैवी।
इतना सारा स्पेस लेता है, इतना सारा इसको ट्रांसपोर्ट करने में इतना सेफ्टी इश्यूज है, बिकॉज ये हैंगिंग बार्स, लोहे के बार्स हैं। जब ये घूमते हैं तो आसपास के डायमीटर में जो होगा वो गया। तो जब ये यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जान हलक में होती है सबकी। मतलब हूटर बजने लगता है कि प्लीज स्टॉप मूवमेंट, इस इलाके में कोई घूमो फिरो मत, मरा जाओगे। सिंपल आंसर है, कटर के नजदीक इसको पहुंचाओ, या मे बी कटर यहीं डिप्लॉय कर दो। एक बार कट के आप कन्वेयर लगा दो, यहां से यहां सामान मूव हो जाए। फिर इंसान मत रखो, यहां कन्वेयर लगा दो, ऑटोमेटेड बेल्ट जिसपे ये काट के मैं रखूं और यहां से यहां ये अपने आप मूव होकर के आ जाए, ताकि यहाँ प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 जो मैंने डिजाइन किया है वो यहीं हो जाए। एवरीवन विथ मी? Yes. Yes, sir. वी आर ओनली आस्किंग यू टू एस्टैब्लिश लॉजिक। और लीन पढ़ना है तो सबसे अच्छा जाके किचन में पढ़ो। हैव योर ग्रैंडमदर और योर मदर ऑब्जर्व हाउ दे प्लेस देयर थिंग्स बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अम्मा से अच्छा कोई टीचर नहीं है लीन का। मैं अपनी अम्मा को कम पढ़ा लिखा समझता था। व्हेन आई बिकेम अ लीन प्रैक्टिशनर ना, तो मुझे समझ में आया कि ये किताब से ज्यादा पढ़ी हुई है। माय मदर हैजंट लर्नड लीन, ध्रुव, बट द वे शी हैज ऑर्गेनाइज्ड हर किचन, उसको मालूम है एक हाथ पे वो निकाल सकती है, यहाँ जीरा था, यहाँ धनिया था, एक हाथ में वो, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स अननेसेसरी मोशन विल रूइन हर टाइम, which is very crucial for her to be able to produce the food at the right time. Everyone with me on this so far? Yes, sir. Yes. 5 minute का cigarette break. then I'll continue from here. Okay. Sure, sir. So I started by saying that lean is a philosophy around which a lot of our improvement is done, and this is largely easy common sense method, does not require. Sorry, all of you are back? Dhruv, Nisha, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Akanksha, Divya, all back? Yes. Okay. So one of the reasons why lean method has been so successful is largely because lean as a method is easy. It's not very data driven. इसको करने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी. So one of the easiest improvement methods that the industry uses today is lean. Lean में बहुत सारे methods हैं, tools हैं. एक तो we discussed 3L. एक will be a simple Kaizen, where we are necessarily looking at small improvement opportunities. And work at fixing them. But because it absolutely lacks any international framework, so everyone uses their own thing. For example, we are saying that just bear with me for half a minute. ये क्या बनाया इसने?
You guys are able to see my screen, right, everyone? Yes, Pranay. Yes, sir. We have created our own 8-step Kaizen. Step number 1, we are looking at doing our problem selection. Out of many problems, we are looking at identifying which is going to be our top problem to fix. Step number 2, what are the concerns? So I'm saying step 1, here I'm necessarily looking at prioritizing out of many things that may not be working right. Which problem do you plan to choose? Step 2, understand the current situation. Whatever problem you are looking at solving, please quantify. नंबर में बताओ क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है. Once you've identified that, my step number 3 is now about setting a goal. क्या target होगा? So now that you understand that मुझे hiring में बहुत ज़्यादा time लग रहा है, I have been numerically able to say that the average time taken to hire is 60 days. Step 3, goal क्या है? Step 4, उसके root causes. Step 5, थोड़ा और drill down करें, 5 why जैसा कोई step लगाएं, and simply getting at building countermeasures. अगले Saturday हम इसी को पहले focus करेंगे. I will send this reading content also. While this is not part of your Six Sigma training that you've enrolled for, but I see that couple of students have come back to me to say that आज के interview में Kaizen पे ज़्यादा focus कर रहे हैं. So I would want all of us to do a couple of projects on Kaizen. Fair, everyone? So that you are able to understand. और ये quick deliveries है, ये तुरंत में हो जाने वाले projects हैं. So these small projects can actually help us gain, understand and build in quick results in our business processes. तो मैं ये deck आप लोगों को share कर दूंगा और अगले Saturday हम पहले ये 7-8 step Kaizen board discuss करेंगे and then we will go to our Six Sigma topics of basic stats and whatever else. Fair, everyone? Yes. Nisha, are you certified for ISO 9001? Are you already a leader editor? No, sir. उसके लिए कुछ कंटेंट चाहिए आपको? Yes, I need ठीक that. है, ठीक है. And if you are available, I do a lot of ISO 9001 consulting myself. तो अगर टाइम होगा तो मुझे बताना, मैं आपको इंक्लूड Yeah, कर that दूंगा. was- Okay, sir. और कुछ नहीं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा ऑडिट रिपोर्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ बसड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रहा है ना? Yes. So you can build your competence. And Dhruv, Divya, Akanksha, ISO 9001 is a good thing to learn. तो मैं इसके वीडियोस आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. आई एम श्योर कि ऑलरेडी शेयर्ड होगा. अगर नहीं भी शेयर्ड होगा तो आप लेट मी नो, मैं आप लोगों के साथ उसका वीडियो सीरीज शेयर कर दूंगा. इट इज गुड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ISO 9001. It helps you in your Sure, journey as sir. an improvement consultant. Oh, please, Pranay. Sure, sir. Yeah, sure. Sure. ठीक है, I will not continue further today. Saturday, अगले Saturday से will start. थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट देना होगा मुझे. I will need you to keep going back to what we've done. अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो discussion के मोड में है. But subsequently, you will have to start helping me with a lot of effort on your end.
so that हम आगे बढ़ते जाएं तो हमारे फाउंडेशन स्ट्रांग हो। थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करना है, जो भी टॉपिक्स मैंने दिए, मैं बहुत सारा रीडिंग कंटेंट दूंगा, तो थोड़ा टाइम लगा के उनको पढ़ते जाना है, उनके एग्जाम्पल्स बनाते जाने हैं, सो दैट वी आर एबल टू डू आवर जॉब बेटर। एंड इफ पॉसिबल, अगर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के Definitely, पास sir. अवेलेबल, और अगर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, तो मैं ट्रेनिंग कंटेंट जो दूंगा उसमें पढ़ाओ, लोगों को पढ़ाओ। आकांक्षा, वंस आई ट्रेन यू इन काइजन, गो बैक टू योर ऑफिस एंड से आई वुड वांट टू ट्रेन पीपल ऑन काइजन। जाओ पढ़ाओ, खुद को प्रैक्टिस दो। Yeah. एक बार अच्छे से 7QC टूल समझ में आ गया तो जाके पढ़ाओ। उससे क्या होता है ना, खुद के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन आई एम देयर टू हेल्प इन व्हाटएवर वे यू वांट मी टू। Yeah, I used to discuss. I think you know Anuradha Singh. Hmm. Yeah, she is Apex manager in my company now. So we used to discuss about things. So she only recommended me to join AIG, गुड। and she knows you very well. हाँ, Yeah. पुरानी फौजी है मेरी। अनुराधा इज Mm. अ ओल्ड फ्रेंड। Yeah. तो ये सब शुरू करना है, और लिंक्डइन को बहुत इस्तेमाल करना है। ध्रुव, आकांक्षा, दिव्या, निशा, 7 वेस्ट पढ़ा ना, तो कुछ आर्टिकल बना करके डाल दो लिंक्डइन पे। Yeah. Okay, थोड़ा सा okay, शोर, sir. थोड़ा सा शोर मचाना शुरू करो, दैट यू टॉक अबाउट लीन, दैट यू टॉक अबाउट इम्प्रूवमेंट्स, यू टॉक अबाउट काइजन। अभी ये जो फोटो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा, ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये वाला फोटो डाल दो। थोड़ा सा उसका, थोड़ा सा उसके लिए चैट जीपीटी से कंटेंट निकालो और थोड़ा उल्टी कर दो लिंक्डइन पे। Yeah. बहुत सर बहुत फर्क मुझे पड़ेगा। ऐड कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी है, एक श्योर बार श्योर चेक करके। हाँ श्योर हम्म श्योर, पक्का।